Students, today we will be discussing about morphology of flowering plant, that is chapter 5, and in this chapter we are going to discuss about the external features of the plant. And what are the base external feature? As you can see in the diagram, it is given here that this is the structure of a plant, and in this plant you can see that these are the roots, then shoot, then leaves, buds and fruits and flowers. All these things are present in a complete plant. So we have to study about these things, but this year the part of stem, leaves and stem, all these things are deleted, only inflorescence are there. So what is the inflorescence? Inflorescence is a modified shoot. If somebody says that define the flower, what is flower, है ना, कोई आपसे पूछे inflorescence क्या है, flower क्या है, उसको आप कैसे define करेंगे? तो inflorescence is nothing but a modified shoot, and where shoot apical meristem changes to floral meristem. Now you know what is meristem. You all know, you have studied in your previous chapters and previous classes that meristem are the kind of tissue which have the power of division. They can divide anytime. In case of plant ये हमेशा divide होते रहते हैं, तो dividing cells are known as meristem cells, and these meristematic tissues are present into the shoot or at various places, like they are present here. Suppose they are present here, so that what happens that the leaves, these things keep on growing, है ना, ये सारी चीज़ें बनती जाती हैं तो ये ग्रो करती हैं यहाँ पर. तो यहाँ पर मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है, that is called shoot meristem. Then there is a root meristem that is present here, that is apical meristem, that means here. So according to the name, आपके plant के various parts में meristematic tissues present होते हैं, that means those cells are there which have the capacity to divide, और जब वो divide कर सकते हैं तो किसी भी चीज़ में transform हो सकते हैं. तो what is a flower? I am just telling you, ये बात कर रहे थे ना हम. तो flower is a modified shoot. I am telling you that this is the shoot and it gets modified here. So शूट एपिकल मेरिस्टम, दैट मीन्स प्रेजेंट ओवर हेयर. यहाँ पर कौन सा मेरिस्टम होगा? एपिकल मेरिस्टम होगा, जिसकी वजह से प्लांट में डिवीजन हो रहा है एंड सेल कीप ऑन इंक्रीजिंग. तो एपिकल मेरिस्टम चेंजेस इनटू द फ्लोरल मेरिस्टम, दैट मीन्स इट गिव राइज टू फ्लावर नाउ. एंड इंटरनोड्स विच आर प्रेजेंट हेयर, यू कैन सी इट हेयर, इट इज़ इंटरनोड, इट इज़ इंटरनोड, है ना. जहाँ से भी लीव्स निकल रही हैं दे आर इंटरनोड्स. तो ये जो नोड्स, जहाँ से भी लीव्स निकल रही हैं दे आर कॉल्ड नोड्स, और ये जो बीच का एरिया है ये वाला, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनोड एरिया. कलर चेंज कर देती हूँ पर्पल कलर से. तो दिस इज़ कॉल्ड इंटरनोड. तो नोड से लीव्स अराइज करते हैं एंड दिस इज़ इंटरनोडल एरिया. तो दीज इंटरनोडल एरिया दे डू नॉट इलोंगेट, बिकॉज इफ दे इलोंगेट देन प्लांट कीप ऑन ग्रोइंग इन द हाइट, है ना. और अगर ये इलोंगेट करना बंद कर देते हैं, दिस रीजन स्टॉप इलोंगेटिंग, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट दिस रीजन, ये अगर स्टॉप कर देते हैं ग्रो करना, देन जो फ्लोरल एक्सिस है इट बिकम कंडेंस्ड. तो ये कंडेंस्ड हो जाती है, इंटरनोड्स कंडेंस्ड हो जाते हैं, दैट मीन्स छोटे छोटे हो जाते हैं, पास में आ जाते हैं, और उसके बाद में उनसे क्या बन जाता है? फ्लावर बन जाता है कंप्लीट. तो दैट मीन्स कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द floral axis is known as inflorescence. If somebody says that what is inflorescence, because we are not talking here about the single flower, तो ये चीज़ जो है पूरी क्या कहलाएगी? inflorescence. क्योंकि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? पूरी वो ब्रांच. तो यू कैन से अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, मीन्स फ्लावर कैसे अरेंज है यहाँ पर एक फ्लोरल एक्सिस पर. एक्सिस मीन्स जो पार्ट ऑफ स्टेम है, दैट इज़ कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस. तो बाय द डेफिनेशन यू कैन से दैट अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स on the floral axis is known as inflorescence, and depending upon the you can say apex, है ना, इसके बेसिस पर you can divide it whether it is cymose kind of flower or racemose type of flower. So with the help of another slide I will explain you cymose and racemose exactly, and this is the diagram of the cymose flower. What I tell you right now, that it depends upon the apex. Either apex is get converted into a flower or not. For example, I will show you with the help of diagram. Suppose I am taking this color. Suppose this is the stem, ठीक है, this is the stem and it is keep on growing and it is the apex portion. top पर तो apex ही होगा. This is the apex portion. अब it depends. Suppose यहाँ पर तो flower एक flower निकल गया. नाउ इट स्टॉप्स द ग्रोथ, क्योंकि अब ये स्टेम आगे नहीं बढ़ेगा ग्रोथ में. अब क्या होगा? अब यहाँ पे साइड में अब ये साइड में ब्रांचिंग होगी. एट हेयर दे स्टार्ट फ्लावरिंग, है ना. यहाँ पर फ्लावर निकलेगा, यहाँ निकलते रहेंगे फ्लावर, मगर ऊपर नहीं निकलेंगे.
तो ये यहाँ पर ग्रोथ क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, वन इज नोन एज रेसिमोज एंड अदर इज नोन एज साइमोज. In this diagram it is cymose kind of inflorescence is given here, and you can understand it now that main axis terminates into flower. This is the main axis. यहाँ पर एक फ्लावर निकल गया, अब इसकी ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो गई, ठीक है, यहाँ पर फ्लावर निकल गया, तो दैट मीन्स मेन एक्सिस टर्मिनेट्स मीन्स कन्वर्ट इनटू अ फ्लावर, hence growth is stopped or limited, and the flower again they born on a little branches, यहाँ पर निकलेंगे. और you can say that it is in the basipetal order. There is a word that is basipetal, PETAL, basipetal order flower, or you can say हाँ ये कह सकते हैं flower are born in a basipetal order. And what is the meaning of this basipetal? Basipetal means arrangement of flower in which younger flowers and buds are present at the bottom, that means यहाँ पर कहीं पे, and older flowers at the top. जो पुराना फ्लावर होगा सबसे पहले जो निकला होगा वो कहाँ पर होगा, सबसे ऊपर होगा, और जो यंग फ्लावर है वो नीचे. देखिए यहाँ पर बड निकल रही है, ये बाद में निकलेंगे, ये नीचे होंगी, और ये पहले निकला वाला फ्लावर है. तो इसको बोलते हैं बेसिपिटल ऑर्डर. अगेन आई रिपीट दैट अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इन विच यंगर फ्लावर्स आर ऑन द बड्स प्रेजेंट एट द बॉटम एंड द ओल्डर फ्लावर एट द टॉप ऑफ द लेवल्स, है ना. अभी मैंने नोट्स भी बनाए हुए हैं, तो आई विल शो यू दैट ऑल्सो. नाउ कम टू द रेसिमोस काइंड ऑफ इन्फ्लोरेसेंस. दिस इज द रेसिमोस काइंड ऑफ inflorescence. And what is the racemose kind of inflorescence? In it main axis continue to grow. You can see that here ये main axis जो है ये grow करती जाती है, flower बढ़ता चला जाता है, and flowers are born laterally. flower यहाँ निकलते चले जा रहे हैं, सारे साथ साथ निकल रहे हैं. तो इट इज़ मेन एक्सिस कॉन्टिन्यूस टू ग्रो. मेन एक्सिस पर यहाँ पर कभी भी एक फ्लावर निकल के इसकी ग्रोथ को स्टॉप नहीं करता है. तो इन दिस केस में क्या होगा कि मेन एक्सिस कीप ऑन ग्रोइंग, ये ग्रो करती रहती है, यहाँ साइड साइड में फ्लावर होते रहते हैं, ठीक है. साइमोस में क्या होता था कि टॉप पे एक फ्लावर निकल गया और उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती थी. हेयर देयर विल बी नो स्टॉपेज ऑफ ग्रोथ. तो इन दिस मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, फ्लावर्स आर बोर्न लेटरली इन एन एक्रोपिटल ऑर्डर और सक्सेशन. व्हाट डू यू मीन बाय एक्रोपिटल? क्योंकि वहाँ तो आपने बेसिपिटल पढ़ा था. एक्रोपिटल, द स्पेलिंग आई एम गोइंग टू राइट इट, ACRO, एक्रो, PETAL, petal. तो एक्रोपिटल मीन्स arrangement of flower on the stalk of flower in a such a way that new flowers and buds are at the top and the older flowers are at the bottom. That means older flower तो bottom पे होंगे और जो new flowers हैं और जो new buds हैं, जो flowers हैं पेडिसल में कि new flowers and buds जो हैं वो top पर and older flowers at the bottom पर होंगे. तो जैसे हमने पहले बेसिपिटल में पढ़ा था, व्हाट हैपन देयर, द यंगर फ्लावर्स एंड बड प्रेजेंट एट द बॉटम एंड द ओल्डर फ्लावर्स एट द टॉप. वहाँ पर ओल्डर फ्लावर टॉप पर थे, यहाँ पर यंगर फ्लावर जो है वो टॉप पर होंगे. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द साइमोज एंड रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस. नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग, क्योंकि आफ्टर इन्फ्लोरेसेंस में आपने देख लिया कि किस तरह की ब्रांचिंग होगी. नाउ कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर. यू ऑल नो द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर बिकॉज यू से दैट you have seen many times. फ्लावर का स्ट्रक्चर कोई नई चीज़ तो है नहीं, बट वाई फ्लावर इज़ इम्पॉर्टेंट? बिकॉज फ्लावर इज़ अ रिप्रोडक्टिव यूनिट. सपोज आई जस्ट ओपन द डायग्राम ऑफ अ फ्लावर. सपोज दिस फ्लावर वी आर टॉकिंग अबाउट दिस फ्लावर. तो फ्लावर इज़ एन रिप्रोडक्टिव यूनिट. यू ऑल नो दैट इन एंजियोस्पर्मिक फ्लावर there are stamens, there are gynoecium which are present into the flower. So flower has a different kinds of whorls. वर्ल्स, WHORLS, वर्ल्स, WHO, ये आप जगह जगह पर लिखा हुआ देखेंगे. वर्ल्स मीन्स होता है सर्कल. तो कैसे सर्कल? दैट मीन्स वो बात करते हैं सर्कल का मीन्स, जैसे पहले आप सपोज ड्रॉ कर देती हूँ एक फ्लावर आपके लिए, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट व्हाट आर द वर्ल्स. सपोज आई एम ड्रॉइंग अ फ्लावर हियर, दिस इज़ द स्टेमन एंड दिस इज़ द फ्लावर. दीज आर द पेटल्स. इनको हम क्या बोलते हैं? पेटल्स बोलते हैं. एंड यहाँ पर ये ग्रीन से लीव्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सेपल्स. देन यहाँ पर अगर ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो इसके अंदर फीमेल पार्ट भी होगा और इसके अंदर ये ऐसे निकल के स्टेमन भी होगा, ठीक है, ये चीज़ें भी होंगी इनके अंदर. तो दिस इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ कंप्लीट फ्लावर. these are the petals, these are the sepals, these are the female part, this is the male part. एटलीस्ट इतना मिनिमम पार्ट तो होते ही है ना फ्लावर्स के अंदर.
तो दीज आर कॉल्ड वर्ल्स. वर्ल्स मीन्स एक ये वाला वर्ल्ड, एक ये सर्कल हो गया, चारों तरफ होगा ये, है ना, एक ये वाला सर्कल हो गया, तो दो ये सर्कल हो गए. देन अगेन सर्कल कौन सा, ये वाला जो स्टेमन्स गए हुए हैं, इनका भी एक चक्कर है, गोले में लगे हुए हैं, सारे सर्कल में लगे हुए हैं. तो दैट मीन्स वर्ल्ड इनको बोलते हैं कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ल्स आर अरेंज्ड ऑन अ स्टॉक. एंड स्टॉक को हम क्या बोलते हैं, पेडिसिल, और यू कैन से स्टॉक सिंपल लैंग्वेज में, तो पेडिसिल बोल सकते हैं, पेडिसिल पर लगे होते हैं. एंड ऑल्सो कॉल्ड थैलेमस और रिसेप्टिकल, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा सा भी स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसे करके लगा होता है फ्लावर पे, तो दैट इज़ कॉल्ड रिसेप्टिकल और थैलेमस, जहाँ से सारे फ्लावरिंग पार्ट निकले हुए होते हैं. So now we are going to deep study of the flower, and the flower is made up of 4 kinds of whorl. You already know that calyx, CLAYX, one is calyx, then corolla, then androecium, 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 then gynoecium, GYNOECIUM. These are the 4 floral whorl which are present in every flower. जो भी एक नॉर्मल फ्लावर है बाइसेक्सुअल, उसमें 4 चीज़ें होती हैं. देन कैलेक्स एंड करोला, these are known as accessory whorl. Accessory whorl, whorl मैंने आपको बताया था, accessory whorl. And these androecium and gynoecium, these two are known as reproductive or essential. You can call them essential, you can call them reproductive. अब what do you mean by this? That calyx and corolla नहीं होगा तो काम चलेगा, because these are the accessory. But androecium and gynoecium नहीं होंगे तो फ्लावर में रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होंगे, ऑर्गन्स नहीं होंगे, यू कैन से, तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा, उनकी प्रोजेनी आगे नहीं बढ़ेगी. दैट्स वाई वी कॉल देम एसेसरी. दैट मीन्स दीज एसेसरी पार्ट्स आर डू नॉट पार्टिसिपेट इन टू द डायरेक्ट इन टू द रिप्रोडक्शन, है ना, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते ये. वेयर एज एंड्रीशियम एंड गैनीशियम विच आर मेल एंड फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, दे डायरेक्टली इंटरेक्ट इन द, और यू कैन से दे डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन टू द reproduction process. So that's why these are the important thing. Now sometimes also happen then corolla and calyx are fused together and called perianth. Otherwise क्या होता है कि normal flower में you can see that suppose this is the flower, green कलर का flower हो गया हमारा, तो red कलर का flower बनाते हैं, ठीक है. suppose this is the flower, ठीक है, I remove it rather. This is the petals, these are the petals, and you know that here is a green color sepals, these are the present. So you can see it very distinctively that green color is here, so that means ये sepals हैं, ये flower हैं, petals हैं. But sometimes what happens is that calyx and corolla both are fused, you cannot see them separately. तो उस चीज़ को हम क्या word नाम देते हैं, उनको हम बोलते हैं perianth, PERIANTH. Important thing students, perianth means when you cannot see separate calyx and corolla, they are get fused like जिसमें वो होता है पैडी को क्या बोलते हैं, राइस की जो क्रॉप होती है ना, वीट होता है, उसमें आपको अलग अलग से सेपल्स और ये सब नहीं दिखते, दे गेट फ्यूज्ड. तो कैलेक्स एंड करोला फ्यूज कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पेरियंथ. दिस इज द टर्म, बिकॉज इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न वेरियस काइंड्स ऑफ टर्म्स. तो आपको बहुत सारे टर्म्स बच्चों लर्न करने पड़ेंगे. तो नाउ बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्लावर की 2 कंडीशंस और भी पॉसिबल हो सकती हैं. फ्लावर मे बी बाइसेक्सुअल और फ्लावर मे बी यूनिसेक्सुअल, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ. तो इट मे बी बाइसेक्सुअल. बाइसेक्सुअल मीन्स मेल एंड फीमेल. दिस इज द सिंबल ऑफ फीमेल and this is the symbol of male. If both the organs are present in a flower, that means androecium भी है और gynoecium भी present है जिस flower में, उसको हम बोलते हैं bisexual flower. And what is about unisexual flower? Either androecium is present or gynoecium is present. That means either male part is present or female part is present. दोनों में से कोई एक होगा. That flower is known as the unisexual flower. तो ये दोनों तरह से possible है. And like in this diagram which is shown in your screen, this is a bisexual flower, because as you can see that here stigma, style, ovary, stamen भी दिया हुआ है, style, ovary भी दिया हुआ है यहाँ पर, stigma, style, ovary and stamen, है ना, दोनों चीज़ें दी हुई हैं. तो that means female part is also there and male part is also there. तो this is known as bisexual flower. और अगर एक ही होता, केवल stamens होते या केवल gynoecium होते, then you call them unisexual flower. And now come to the symmetry, the next and you can say first thing about
फ्लावर की हम जो पहली चीज़ पढ़ते हैं दैट इज़ कॉल्ड सिमेट्री, लाइक वी हैव स्टडीड इन द एनिमल किंगडम ऑल्सो. एंड सिमेट्री मीन्स कि व्हेन वी कट द फ्लावर एट अ सिंगल प्लेन और टू हाफ्स, तो you can see, if you can divide it completely in a single plane or you can say double plane, तो आपको कितने हाफ्स मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग इनको हम सिमेट्री बोलते हैं इसको. जैसे फॉर एग्जांपल एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक, 2 टाइप की सिमेट्रीज होती हैं. ज़्यादा जैसे हमने एनिमल किंगडम्स में पढ़ी थी रेडियल और बाइलेटरल इस टाइप की, वैसे नहीं होती. दे हैव 2 काइंड्स ऑफ सिमेट्री, दैट इज़ कॉल्ड एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक. And in the first case you can see it here that it is showing actinomorphic. Actinomorphic में you can see that it is just like a, you can say, radial symmetry, because you can see in this diagram that the parts are very much similar in size and shape. So that means in such flower you can divide we can say that flower can be divided into 2 equal halves along more than one median plane, है ना. आप ये लाइंस देख रहे हो, किधर से भी इनको काटा है इन्होंने, किसी भी मीडियन प्लेन से काटा है, तो 2 इक्वल हाफ्स में ईजिली डिवाइड हो जा रहा है. दैट फ्लावर्स आर नोन एज द एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर. एंड अनदर वन इज दिस, सेकंड वन इज, इट इज़ कॉल्ड जाइगोमॉर्फिक फ्लावर. अब जाइगोमॉर्फिक तो देख के ही आपको लग रहा है कि इफ़ यू कैन डिवाइड इट लॉन्गिट्यूडनली ओनली, लॉन्गिट्यूडनली मीन्स होता है यूँ लंबाई में, ओनली देन इट कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 हाफ्स इन 1 वर्टिकल प्लेन, अदरवाइज नहीं डिवाइड होंगे तो फ्लोरल वल्स आर अनइक्वल हो जाएंगे, है ना. तो इसलिए अगर आप इसको कट करेंगे तो आप देखोगे कि दिस जाइगोमॉर्फिक कैन बी डिवाइडेड लॉन्गिट्यूडनली इनटू 2 इक्वल हाफ्स इन ओनली 1 वर्टिकल प्लेन, एंड फ्लोरल वल्स आर अनइक्वल, है ना. आपको एक जैसे नहीं मिलेंगे, उसमें कुछ ना कुछ अलग डिफरेंस आ जाएगा, तो दे आर कॉल्ड द जाइगोमॉर्फिक. अदरवाइज आप उसको एक मतलब कहीं से भी कट करेंगे तो वो एक्टिनोमॉर्फिक है, किधर से भी काटोगे आपको 2 इक्वल हाफ्स मिलेंगे, मगर इसमें ऐसा नहीं होता. जाइगोमॉर्फिक में आपको 2 इक्वल हाफ्स किसी भी प्लेन से काटने पर नहीं मिलते हैं इक्वल. एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड. अब रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड्स के बारे में हमने पढ़ना है. सपोज हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर के बारे में पढ़ें तो उसमें केवल आपको मेल या फीमेल मिलेगा फ्लोरल पार्ट. तो सपोज इफ़ ओनली मेल पार्ट इज प्रेजेंट, सपोज कोई फ्लावर है, अगर मैं अगेन आई विल ड्रॉ द डायग्राम बिकॉज दिस चैप्टर इज प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर, बट आई एम ट्राइंग टू टीच यू इन थ्योरी फॉर्म ऑल्सो. सपोज दिस इज द फ्लावर एंड हेयर ओनली स्टेमन्स आर देयर, बाकी सारे पार्ट हैं, ये आपके सिपल्स हो गए, एवरीथिंग इज देयर, ओनली स्टेमन्स आर प्रेजेंट. तो यू कॉल देम स्टेमिनेट फ्लावर. स्टेमिनेट, you have to learn all these things. Staminate, तो this is called staminate, that means stamen present है, ठीक है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं staminate. staminate अगर बोला जाए कि this flower is staminate, that means you can understand that unisexual flower with stamens but no pistils, that means female part नहीं है इसके अंदर. sometimes you can call them pistillate flower also. suppose I will draw the again a flower, and first of all I draw it. this is the flower, ये फ्लावर है इस तरह का. ओके, दीज आर द सेपल्स एंड ओनली यू कैन सी दैट फीमेल पार्ट इज प्रेजेंट, देर इज नो स्टेमन्स, स्टेमन्स नहीं है, तो यू कॉल देम पिस्टिलेट फ्लावर. व्हाट यू कॉल इट? pistillate, P-I-S-T-I-L-L-A-T-E. that means pistil is present. Pistil is the female part of the flower, so that is a unisexual flower with a pistil but there is no stamens. So you have to define it properly that these are the unisexual flower with a pistil but no stamens. Pistil means gynoecium, pistil means stigma style ovary. And then you call them monoecious and dioecious. 2 words again you have heard in the animal kingdom, that what is the meaning of monoecious? Monoecious means stamen and pistils both are present on the same plant. that means simple वही चीज़ जो मैंने आपको बाइसेक्सुअल में बताई थी, इसमें दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं. एंड dioecious का मीन्स either they are staminate or they are pistillate, मतलब या तो स्टेमन होगा या पिस्टिल होगा. तो इनमें अलग अलग फ्लावर्स होते हैं, अलग अलग फ्लावर के अंदर निकलते हैं. कोई कुछ फ्लावर स्टेमिनेट होते हैं और कुछ फ्लावर जो है वो पिस्टिलेट होते हैं, मतलब एक ही फ्लावर में दोनों चीज़ें नहीं होती हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट्स. कितने नंबर हैं? समटाइम्स यू कैन सी, यू कैन ईजिली काउंट इवन इफ़ यू गो थ्रू वेरियस काइंड्स ऑफ फ्लावर. तो आप देखेंगे किसी किसी में ऐसे केवल 4 पेटल्स निकले होते हैं बस फ्लावर के अंदर, और ना केवल 4 पेटल्स, सेपल्स भी 4 होंगे उसके अंदर, ये भी 4 होंगे.
फिर अंदर अगर आप जाएंगे तो उसके अंदर पता चला कि एंथर भी आपको 4 ही मिलेंगे, लाइक दिस थिंग है ना, तो 4 4। तो इस तरह से जो इनके मल्टीपल्स में, जितने मल्टीपल्स में होते हैं, तो वी ऐड द वर्ड मेरस। हम क्या वर्ड लगा देते हैं? मेरस, MEROUS, मेरस। लाइक इफ दे आर प्रेजेंट इन टू द मल्टीपल ऑफ 2, तो यू कॉल देम डाइमेरस। if they are present in the multiples of 3, you call them trimerous. Multiple of 3 means अगर 3 सेट प्रेजेंट हैं, दैट मीन्स 3 करोला, 3 कैलेक्स, 3 एंडोशियम, तो 3 गैनीशियम कभी भी नहीं होते इस तरह से, लेकिन एंडोशियम तो हो सकते हैं, तो यू कॉल देम टेट्रामेरस अगर 4 हैं। पेंटामेरस इफ़ दे आर 5 इन नंबर, है ना, 5 पार्ट्स होंगे फ्लावर के, मतलब दैट मीन्स 5 स्टेमन्स, 5 sepals, 5 petals, like this. And now come to the another thing that is known as the gynoecium. Gynoecium is very much important, and I think we will discuss gynoecium in the next topic, because this video is going to be very long in this way, but here they have given the gynoecium thing, so I will try to wind it up here by the explaining you the little much about the gynoecium also. That position of floral parts on the thalamus. Thalamus means this is the, suppose this is the thalamus and floral parts are present on it. Suppose यहाँ से जो भी floral parts निकलते हैं उनके basis पर उनको हम क्या बोलते हैं? Position of floral organs on the thalamus. So it can be divided into hypogynous, perigynous and epigynous, and both three are very very much important for your examination purpose also. That is hypogynous, perigynous and epigynous. epigynous NOUS मैंने आगे नहीं लिखा हुआ है, हर एक में NOUS लगा लेते हैं, ठीक है। तो these are the 3 types, and how you can define all these 3 things? For that, suppose I am talking about the hypogynous flower, you focus on this. Hypogynous means a flower in which all other floral parts are situated beneath the ovary. That means suppose this is the ovary, तो जो दूसरे फ्लावरिंग पार्ट्स हैं दे अराइजेस फ्रॉम हेयर, बिलीथ द ओवरी। यहाँ से स्टेमन्स निकलेगा, फिर यहाँ से करोला निकलेगा, फिर यहाँ से ये सेपल, सॉरी हो गए ग्रीन वाले, ये सेपल थे, फिर ये करोला निकल रहा है, फिर यहीं से एंडोशियम भी निकल रहा है, येलो कलर सपोज कर ले, ये एंडोशियम भी यहीं से निकल रहा है। दैट मीन्स ऑल द फ्लोरल पार्ट्स आर कमिंग आउट फ्रॉम बिलो द ओवरी, है ना। ओवरी सुपीरियर होती है, उसमें ओवरी ऊपर होता है, ओवरी के नीचे से सारे पार्ट निकल रहे होते हैं, तो इट इज़ अ फ्लावर इन विच ऑल द अदर फ्लोरल पार्ट्स आर सिचुएटेड बीनीथ द ओवरी, है ना। तो नीचे से निकलते हुए दिखा दिया मैंने आपको थ्रू द डायग्राम। देन कम टू द पेरीगाइनस. व्हाट डू यू मीन बाई पेरीगाइनस? अब पेरीगाइनस में क्या होता है? दैट फ्लोरल ऑर्गन्स बोर्न एंड अराइजिंग फ्रॉम अराउंड द ओवरी, नॉट द बीनीथ. इसमें क्या होगा कि साथ साथ निकलेंगे. दिस वन, ये डायग्राम आप इजीली देख सकते हैं. अब इसमें क्या हो रहा है इस डायग्राम के अंदर कि सपोज आई हैव ड्रॉन दिस काइंड ऑफ डायग्राम, ये इस तरह से, एंड जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो यहाँ से कहीं से निकल रहे हैं, इस जगह से इस तरह से निकल रहे हैं. तो दैट मीन्स फ्लोरल ऑर्गन्स बोर्न एंड अराइजिंग फ्रॉम एंड अराउंड द ओवरी. ये येलो वाला सपोज कर लो ओवरी है, तो इसके चारों तरफ से निकल रहे हैं, है ना, कहीं से भी, ये चारों तरफ से, उसके नीचे से नहीं निकल रहे. दैट इज थिंग. एंड नाउ नेक्स्ट इज द लास्ट वन इज द पेरीगाइनस थिंग. एंड व्हाट डू यू मीन बाई पेरीगाइनस? एपिगाइनस. पेरीगाइनस तो हमने कर लिया ना डिस्कशन. नाउ कम टू द epigynous. And epigynous means that floral parts are attached to the upper part of the ovary, and the ovary then appear inferior in position. That means कि suppose कुछ ऐसा हो जाए कि इस तरह से ये ओवरी है और आप इस सारे फ्लोरल पार्ट्स यहाँ से निकल रहे हैं, ऐसे ही, है ना. ये अगर हम रेड कलर का कर दें इसको, तो ये आपके करोला हो गए, इधर नीचे से फिर कैलिक्स हो गए, फिर इधर से हम वो भी निकाल दें, एंडोशियम निकाल दें, फिर गाइनीशियम, तो ये है ही ओवरी यहाँ पे. तो दैट मीन्स और फ्लोरल पार्ट्स आर अबव, ये ऊपर से निकल रहे हैं इसके, एपी, है ना. तो द अदर फ्लोरल पार्ट्स ऑर्गन्स आर अटैच टू द अपर पार्ट ऑफ द ओवरी. ओवरी के अपर पार्ट पे देखो अटैच है. दिस इज द ओवरी, कंप्लीट ओवरी है, और फ्लोरल पार्ट जो है वो सारे यहाँ से अटैच हैं. तो इसमें ओवरी क्या हो गई? इन्फीरियर हो गई, क्योंकि नीचे हो गई ना. तो दैट मीन्स ओवरी इज इन्फीरियर इस केस में कहा जाएगा. और हाइपोगाइनस में ओवरी विल बी सुपीरियर. ओवरी को हम क्या बोलेंगे? सुपीरियर बोलेंगे. वाई वी कॉल इट सुपीरियर ओवरी? बिकॉज इट इज़ द फ्लावर इन विच ऑल फ्लोरल पार्ट्स ग्रोन सिचुएटेड बीनीथ द ओवरी, क्योंकि बाकी के सारे फ्लोरल पार्ट्स ओवरी के नीचे से निकल रहे हैं. तो यू हैव टू रिमेंबर दैट द ओवरी वेयर ऑल द फ्लोरल पार्ट्स, दैट मीन्स कैलेक्स, करोला एंड एंडोशियम, वे नीचे से निकल रहे हैं अगर,
तो ओवरी इज़ हाइपोगाइनस। इफ़ दे आर पेरीफरी पे, पी से पेरीगाइनस, पी से पेरीफरी मीन्स उसी के रिम पर निकल रहे हैं, साथ साथ ही निकल रहे हैं, दैट मीन्स ओवरी के चारों तरफ निकल रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं पेरीगाइनस। एंड एपीगाइनस मीन्स इफ़ द फ्लोर पार्ट्स आर अटैच टू द अपर पार्ट ऑफ द ओवरी, अगर वो ऊपर से निकल रहे हैं, ओवरी के अपर पार्ट से अटैच हैं, दैट इज कॉल्ड एपीगाइनस। तो दीज आर द वेरियस काइंड्स ऑफ position of floral organs on the thalamus, and you have to learn all the terms and also learn the diagram of these kind of hypogynous, perigynous and epigynous. So ultimately मैंने complete ये वाला topic कर ही दिया आपका, तो you have to read it properly and make notes also. I will provide you this PDF in PDF form also. So we will meet in the